Hello students, good morning. So today I am going to start the next example from the exercise 7.1, right? So अब लिमिट्स की प्रैक्टिस चल रही है, हाउ टू इवैल्यूएट द लिमिट. बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, इसके पहले भी एग्जाम्पल लिए. अब देखो ये एग्जाम्पल नंबर 4. So look at the example 4. We have to evaluate the limit. So example number 4, L is equal to limit x tends to 0 1 minus x raised to 8 minus 1 divided by 1 minus x raised to 2 minus 1. अब तो पहला प्रोसेस क्या है कि हम x की जगह पे 0 रिप्लेस करेंगे, बिकॉज x is approaches to 0. So 1 minus 0 is 1, 1 raised to 8 is 1, 1 minus 1 is 0, numerator 0. 1 minus 0, 1, 1 square, 1, 1 minus 1, 0. It is again 0 by 0 form. Indeterminate form है, it means we can't replace direct x by 0. So here इसको तो evaluate करना है, तो क्या कर सकते हैं? So by look, ये दिखने से तो अपना फॉर्मूला के टाइप में एग्जाम्पल है. So what is that formula? यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ. So limit x tends to a, x raised to n minus a raised to n divided by x minus a, which is equal to n times a to the power n minus 1. n times a to the power n minus 1. अब ये एग्जाम्पल इस फॉर्मूले में लुक वाइज तो ऐसा दिखता है, लेकिन यहाँ पर चेंजेस क्या है? यहाँ पर x वेरिएबल है, यहाँ पर फैक्टर है 1 माइनस एक्स, यहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ पर फैक्टर है. बाकी तो हम इसको 1 रेज़ टू 8 कर सकते हैं, 1 स्क्वायर भी कर सकते हैं, बट ये मेजर चेंज है. यहाँ पर x है, यहाँ पर 1 माइनस एक्स है. दिस इज अ वेरिएबल, दिस इज अ फैक्टर. सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू दिस फॉर्म. ये एग्जाम्पल इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन. हम पुट करेंगे यहाँ पर 1 माइनस एक्स की जगह पर हम y पुट करेंगे, दूसरा वेरिएबल. t भी पुट कर सकते हैं. दिस फैक्टर इज इक्वल टू y इज अ वेरिएबल, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू y. तो देखो क्या होता है, अगर एज x टेंड्स टू 0, अगर x टेंड्स टू 0 है, सो 1 माइनस 0 इज 1, इट मीन्स y टेंड्स टू 1. अगर x टेंड्स टू 0 है तो y टेंड्स टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, बिकॉज x 1 माइनस 0 इज 1 मीन्स y टेंड्स टू 1. As x tends to 0, y tends to 1. This factor we replace y. Because of what? We have to convert this into this form. This is the formula form. This is the example. We have to convert into formula form by using this process. This process is the substitution method. We substitute factor is equal to variable. That factor is what? 1 minus x. Now look at the example. अब example बन जाएगा y tends to 1. पहले था x टेंड्स टू 0, अब बन गया y टेंड्स टू 1. सो x 1 माइनस एक्स की जगह पर y, सो y रेज टू 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर माइनस 1, y स्क्वायर माइनस 1, राइट. सो यहाँ पर इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, y टेंड्स टू 1 y रेज टू 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 1 into y plus 1. ये y स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर्स क्या है? y माइनस 1 एंड y प्लस 1. नाउ सो दिस इज इक्वल टू, L इज इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू 1 y रेज टू 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 1 इनटू टेकिंग सेपरेट लिमिट फॉर सेकंड टर्म, दैट इज 1 अपॉन y प्लस 1. 1 upon what? y plus 1. इसका ये तो एक ही है. By using algebra of limits, we can taking separate limit of this factor, because this is a clear-cut formula of this form. But here we can write the separate limit of the second term. So here y raised to 8 minus y raised to 8 minus 1 raised to 8 upon y minus 1. The formula is 8 into 1 raised to 8 minus 1 into y. Replace करो y as 1, so this is 1 upon 1 plus 1, because that term is not in determinate form, that is determinate form. Determinate form means we can replace directly y by 1, because y approaches to 1. So here this is 8 into y raised to 7, 1 raised to 7 is 1, 1 plus 1 is 2, 2 4s are 8. So what is the limit? Limit is what? L is equal to 4. Is it clear?
Now see the example number 5. In example number 5, again same. Example number 5, L is equal to limit x tends to 0. This is cube root of 1 plus x minus cube root of 1 square root of 1 plus x divided by x. अगर यहाँ पर भी हमने x की जगह पर 0 रिप्लेस किया, because x approaches 0, so 1 plus 0 is 1, cube root of 1 is 1, 1 plus 0 is 1, square root of 1 is 1, numerator 1 minus 1 0, and here 0, again 0 by 0. It means we can't replace x by 0 directly. So here again we follow the process substitution. Substitution means हम put कर रहे कुछ तो भी. Last time जैसे हमने 1 minus x put किया था y, तो यहाँ पर 1 plus x put करेंगे y is equal to y. No need every time y we put here t. 1 plus x is equal to t. As x tends to 0, t tends to what? 1. अगर 2 plus x रहता तो t tends to what? 2. 1 plus x, x 0, 1 plus 0, 1, so t tends to what? 1. Right? So this limit becomes, now t tends to 1. Cube root of t minus square root of t divided by x is, अब यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ये x की जगह पर t minus 1 रखेंगे, so x is equal to what? t minus 1. तो यह हमें x की जगह पर t minus 1 रखेंगे. अब एग्जाम्पल में सब t दिखेगा, x नहीं दिखेगा, बिकॉज हमने वेरिएबल चेंज किया है. पहले x था, अभी t हो गया, तो नीचे हम x नहीं लिख सकते. x की जगह पर द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट? t minus 1. ये प्लस 1 लाइट को minus 1, t minus 1. ओके, नाउ दिस इज लिमिट ए t टेंड्स टू 1, t raised to 1 by 3 minus t raised to 1 by 2 divided by t minus 1 divided by what? t minus 1. अब जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले हमें कन्वर्ट करना है, बट स्मॉल चेंजेस इज देयर. यहाँ पर t raised to 1 by 3 minus 1 minus t raised to 1 by 2 plus 1 divided by t minus 1. देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर -1 और +1 किया. वाई? जो हमारा फॉर्मूला है वहां पर क्या x रेस्ट टू n माइनस a रेस्ट टू n है, ये इज वेरिएबल. बट यहाँ पर t रेस्ट टू 1 by 3 माइनस t रेस्ट टू 1 by 2 दोनों भी वेरिएबल है. यहाँ पर एक रियल नंबर 1 चाहिए बिकॉज t टेंड्स टू 1 है, सो -1 किया, उसको बैलेंस के लिए क्या किया? +1. सो नाउ दिस एग्जाम्पल L बिकम्स लिमिट t टेंड्स टू 1. सो एडजस्टमेंट है t raised to 1 by 3 minus 1, taking minus common, t raised to 1 by 2 minus 1 divided by t minus 1. Right? यहाँ से -1 कॉमन निकाला, so t raised to 1 by 2 minus 1. This is equal to t tends to 1, t raised to -1 by 3 minus 1 divided by t minus 1 minus t raised to -1 by 2 minus 1 upon t minus 1. This is equal to, taking separate limit, t tends to 1. सेपरेट डिवाइड के आप सेपरेट लिमिट लेंगे. सेपरेट लिमिट लिया, सिर्फ इस 1 को मैंने क्या किया? 1 raised to 1 by 3. इस 1 is 1 raised to 1 by 2 because 1 raised to anything is 1. Negative power, odd power, 0, fraction power, it is always what? 1. So now it is of what? 1 by 3 into 1 raised to 1 by 3 minus 1 minus 1 by 2 1 by 2 into 1 raised to 1 by 2 minus 1. So 1 raised to anything is what? 1 by 3 minus 1 by 2. Answer is -1 by 6. So this is a limit.
So 2 minus 3 is minus 1. So 3 2s are 6. What is the limit of this function? Minus 1 by 6. Okay, so simple process है. पूरा एक बार उसको ऑब्जर्वेशन करो, हर एक स्टेप में है. यहाँ पर क्या क्या सब्स्टिट्यूशन यूज की, बिकॉज हियर इज अ फैक्टर, वी हैव टू रिप्लेस वन वेरिएबल दैट इज टी. y भी कर सकते हैं लेकिन हमने यहाँ पर t किया. सो ये t रेस टू 1/3 माइनस t रेस टू 1/2 हुआ. उसको फॉर्मूले के साथ कंपेयर करो. डेफिनेटली वहाँ पर एक वेरिएबल की जगह पर वहाँ पर कांस्टेंट टर्म चाहिए थी. सो -1 किया, +1 किया बैलेंस करने के लिए. माइनस कॉमन निकाला, सेपरेट डिवाइड किया. देखो प्रोसीजर -1/6 आंसर आएगा. राइट. सो विल टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल. Now look at the next example. In next example, here we skip the example number 6 temporarily. We will start number 7. हम 7 example start करेंगे. So limit x tends to a. X tends to a, z tends to a. Z tends to a. Z plus 2 raised to 3/2, a plus 2 raised to 3/2 divided by z minus a. सो यहाँ पर और डिफरेंट एग्जाम्पल है. यहाँ पर भी फैक्टर है z प्लस 2, इधर भी फैक्टर है a प्लस 2. सो यहाँ पर ये तो फॉर्मूले के बेस पे एग्जाम्पल है, बट यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा. अगर मैंने z की जगह पर a रिप्लेस किया तो a प्लस 2 रेस टू 3/2, a प्लस 2 रेस टू 3/2 जीरो हो जाएगा. यहाँ पर z की जगह a रिप्लेस करो, a माइनस a कितना बन जाएगा? 0. इट्स एब्सोल्युटली 0/0 फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म. सो आई हैव टू मेक इट डिटरमिनेट बाय प्रोसेस. सो दिस प्रोसेस इज व्हाट? हियर वी पुट z प्लस 2 इज इक्वल टू y एंड ये जो फैक्टर है रियल नंबर का, a प्लस 2 इज बोथ आर रियल नंबर. ये भी रियल नंबर है, 2 भी रियल है, बट वो रियल नंबर का फैक्टर है. यहाँ पर एक लेटर है, दूसरा डिजिट है. सो उस फैक्टर की जगह पे दूसरा रियल नंबर कंसिडर करेंगे b. a प्लस 2 इज इक्वल टू b, z प्लस 2 इज इक्वल टू y. इस वेरिएबल के फैक्टर की जगह पर वेरिएबल, रियल नंबर के फैक्टर की जगह पे रियल नंबर. राइट. सो हियर z प्लस 2 इज इक्वल टू y एंड a प्लस 2 इज इक्वल टू b. सो यहाँ पर y माइनस b करके देखेंगे, y माइनस b. सो दिस माइनस दिस, z प्लस 2 माइनस a प्लस 2. सो z प्लस 2 माइनस a माइनस 2, ये कट हो गया. इट इज अ z माइनस a. So y minus what? b. y minus b, z minus a. y minus b is equal to z minus a. Now as z tends to a, अगर मैंने z tends to a रखा तो a माइनस a कितना हो जाएगा? 0. So therefore y minus b tends to what? 0. यहाँ पर a रखो, a माइनस a कितना होगा? 0. मीन्स y माइनस b टेंस टू व्हाट? 0. y माइनस b टेंस टू 0 मीन्स y टेंस टू व्हाट? b. y टेंस टू b. as z टेंस टू a, y टेंस टू b. so this limit becomes, now limit is equal to what? limit now y टेंस टू b. अब z टेंस टू a की जगह पर क्या हो जाएगा? y टेंस टू b. this factor is y raised to 3/2 minus b raised to 3/2 divided by z minus a. z की जगह पर क्या? z plus z minus a is equal to what? y minus b. This is now formula. x raised to n minus a raised to n upon x minus a, y raised to 3/2 minus b raised to 3/2 upon y minus b. क्लियर फॉर्मूला है. सो इसका आंसर क्या आएगा? 3/2 इंटू b raised to 3/2 minus 1, 3/2 b raised to 3/2 minus 1, n times a raised to n minus 1, 3/2 times b raised to 3/2 minus 1. So here L is equal to 3/2 into b raised to 1/2. 3 minus 2 is 1/2. So 3/2 into
square root of b. But what is actual b? b is a plus 2. So it is a square root of a plus 2. So this is a answer. ये भी आंसर करेक्ट है, बट यहाँ पर b हमने डिफाइन किया था, हमने नाम दिया था, हमने रिप्लेस किया था, हमने पुट किया था b. एक्चुअल b क्या है? a प्लस 2 है. सो आंसर में वही आना चाहिए +2. सो दिस इज अ सोल्यूशन. हर एग्जाम्पल डिफरेंट है. इसको इवैल्यूएट करना है, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बिकॉज एग्जाम्पल तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म में, फंक्शन इनडिटरमिनेंट फॉर्म में, बिकॉज z टेंड्स टू ये है. सो ये तो बाय लुक वाइज फॉर्मूला की तरह दिखता है, सेम वैसा ही दिखता है, x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a. लेकिन हम डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, बिकॉज इन फॉर्मूला देर इज अ वेरिएबल, बट इन एग्जाम्पल देर इज अ फैक्टर. दिस इज द पोजिशन ऑफ रियल नंबर, बट इन एग्जाम्पल दिस इज अ फैक्टर ऑफ 2 रियल नंबर्स. सो हमें उसको इस टाइप से सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके ऐसा क्लियर फॉर्मूला की तरफ दिखेगा, उसके जैसे दिखेगा. Right, y raised to n minus a raised to n upon y minus n. Right, so this is the solution. 3/2 into square root of a plus 2. Okay, next. Look at the example number 8. In example number 8, limit x tends to 7, x cube minus 343 divided by square root of x minus square root of 7. अब ये एग्जाम्पल में फैक्टर नहीं है, डायरेक्ट वेरिएबल है. एक्स क्यूब है, 343 है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 है. सो ये तो सब्स्टिट्यूशन करने की आप जरूरत नहीं है, पुट करने की जरूरत नहीं. देखो एक्स क्यूब 343 7 क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू हाफ minus 7 raised to half, x raised to 7, x raised to half minus 7 raised to half. This is equal to limit x tends to 7. अब यहाँ पर उसके फॉर्मूले के साथ कंपेयर किया तो यहाँ पर एक डिनोमिनेटर में फैक्टर x माइनस 7 नहीं, जो यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा. सो ऑन बोथ साइड वी डिवाइड x माइनस 7, numerator as well as in the denominator. X cube minus 7 cube divided by x raised to half minus 7 raised to half, as per requirement, because we have to convert this example into formula. So here divide on both side by x minus 7, numerator को और denominator को divide किया x minus 7 से, because this is the our requirement. Now taking separate limit of numerator and denominator, same as x tends to 7. So यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की कोई जरूरत नहीं थी, so सब्स्टिट्यूशन नहीं किया. यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कब करना है ये भी समझ में आना चाहिए. Right, now apply the formula for numerator 3 times 7 raised to 3 minus 2, 1 by 2 times 7 raised to 1 by 2 minus 1, 3 times 7 raised to 1, 1 by 2 times 7 raised to 1 by 2 minus 1 is minus 1 by 2. So ये 2 ऊपर जाएगा. दिस इज कैलकुलेशन. डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ट्रांसफर टू न्यूमरेटर, 3 into 2, ये 7 रेस टू 1 7 है, 7 रेस टू माइनस हाफ ऊपर 7 रेस टू प्लस हाफ हो जाएगा. ये सब कैलकुलेशन है. ये डायरेक्ट 2 ऊपर गया कि वही डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है. ये 7 रेस टू माइनस हाफ निगेटिव पावर है, उसको पॉजिटिव किया, 7 रेस टू प्लस हाफ. देखो आप कितना, 3 2 जा 6, 6 7 जा 42 रूट 7. ये उसका लिमिट 42 इंटू root 7, 1 by 2 into 7 raised to 1 by 2 minus 1, 1 by 2 minus 1 is minus 1 by 2. This is the correct answer of example not 8. So केयरफुली उसको ऑब्जर्व करना है, और इस टाइप के जो जो एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज में है, इस सॉल्व एग्जाम्पल है जो मिसलिनियस में, वो आपको ट्राई करना है. इज इट क्लियर? सो लेट अस नेक्स्ट.
जो ऊपर देखो थोड़ा मिस्टेक हुई यहाँ पर, n इंटू ए रेस टू n माइनस वन, 3 माइनस 1 होना चाहिए, 3 माइनस 1 इज 2, 7 स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर 7 स्क्वायर होगा, 7 स्क्वायर इज 49, 49 इंटू 6, 294। यहाँ पर क्या फॉर्मूला, ये जो n है, n इंटू ए रेस टू n माइनस 1, 3 माइनस 2 नहीं, 3 माइनस 1, सो ये करेक्ट करो यहाँ पर आंसर 294 इंटू √7। ओके, विल टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल। लेट अस सी द 9th एग्जाम्पल, L इज इक्वल टू दिस। ऐसा एक एग्जाम्पल प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हुआ था, x रेस टू 1, x क्यूब, x रेस टू 5 अप टू दिस, सो वी राइट दिस, excuse me, plus x cube plus x raised to 5 plus up to x raised to 2n minus 1 minus, so we write here instead of this 1 plus 1 plus 1 plus 1 up to n times divided by x minus 1, so this is equal to लिमिट x टेंड्स टू 1 बाय करस्पॉन्डिंग टर्म का हम डिफरेंस लेंगे x माइनस 1 और उसको सेपरेट डिवाइड भी करेंगे अपॉन x माइनस 1, दैट इज बेस्ट, प्लस x क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, x रेस टू 5 माइनस 1, x रेस टू 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, प्लस सो ऑन दिस माइनस अगेन 1, x रेस टू 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। सेपरेट डिवाइड भी किया इमीडिएटली और करस्पॉन्डिंग टर्म का डिफरेंस भी लिया। सिर्फ यहाँ पर क्या क्या जो n है, इंस्टेड ऑफ दिस n वी कैन राइट 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स। अगर यहाँ पर 2n रहता था तो हम लिखते थे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 अप टू n टाइम्स, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला, क्लियर कट, दिस टर्म कैंसल, हियर बिकम्स 1, लिमिट ऑफ कांस्टेंट टर्म इज कांस्टेंट टर्म, या एक ये एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब है, सो यहाँ पर 3 इंटू 1 रेस टू 3 माइनस 1 प्लस यहाँ पर 1 रेस टू 5 है, 5 इंटू 1 रेस टू 5 माइनस 1 एंड सो ऑन, दिस इज 1 रेस टू 2n माइनस 1, सो 2n माइनस 1 इंटू 1 रेस टू 2n माइनस 1 माइनस 1, सो ये 1 क्यूब है, 1 रेस टू 5 1, सो 2n माइनस 1 मीन्स 1 रेस टू एनीथिंग इज 1, सिर्फ ऐसा किया। सो दिस इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 अप टू 2n माइनस 1, so 1 रेस टू दिस ऑल्सो व्हाट 1, so into 1 is same, so this is arithmetic progression, this is AP। उसका SN का फॉर्मूला, AP का SN का फॉर्मूला क्या है, SN इज इक्वल टू n बाय 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, sum of nth term of arithmetic progression, and this is the arithmetic progression because here difference is constant, 3 minus 1 2 है, 5 minus 3 2 है, 7 minus 5 2 है, difference constant, that's why this is the progression and this progression is called as what, arithmetic progression। उसका सम का फॉर्मूला ये है, ये पी है तो उसका सम का फॉर्मूला ये है, सो यहाँ पर फर्स्ट टर्म 1 है, डिफरेंस 2 है, सो वी राइट इन ब्रैकेट ए पी, सो ये इज फर्स्ट टर्म दैट इज 1, कॉमन डिफरेंस इज 2, सो हियर एल इज इक्वल टू, आई विल राइट हियर एल इज इक्वल टू अप टू n टाइम्स है, सो n बाय 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2, so n by 2 in bracket 2 plus 2 से मल्टीप्लाई करो 2n minus 2 plus 2 minus 2 cancel, n by 2 into 2n, this 2 and this 2 cancel, n square, so this is a limit, limit is what, n square। so ये ऐसा एक एग्जाम्पल हमारा लास्ट टाइम हुआ था वही है, so this is the
answer of example number 9. Okay, so this is sufficient for today's video lecture. We'll take more example on next video lecture. So thank you very much.